Hi everyone, so today we have a special guest on our channel. We have Dhruvil with us, who you might remember from the previous video. So Dhruvil, would you like to introduce yourself to the new viewers? Sure, here. So I'm Dhruvil Nirpara and I'm originally from Surat, Gujarat. And I completed my BTech in computer science from TTU, Delhi Technological University. And throughout my course of 4 years, I have firstly, I have tried my hands around data structures and algorithm. Then I have won multiple hackathons, one of them being JP Morgan Chase Code for Good hackathon, where my team emerged out as first rank. And it was in 2022. And I may not have secured an internship after of like one of my friends did secure it, but I did not secure it. But I think it does not matter right now because I another offer anyways. And after winning that hackathon, I really got into this hackathon space. I took part in many other hackathons, and one of them being Amazon Hackon, which was held in around December 2023 last year. And December not, but around September or something. But yeah, towards the later part of the year. And based on my performance in that hackathon, I was offered an interview. And after I cleared the interview, I was offered a 6 month internship at Amazon. And currently, I work as a software developer at CureFit or CultFit, we rather call it. Yeah. So with me. Yeah, so basically we discussed in the last video how you cracked CultFit, his journey to CultFit. And in this video, we're going to discuss his interview experience at Amazon, like how he cracked Amazon with a hackathon and what was his interview experience. So Dhruvil, tell us about the interview experience, what all happened, how did you get to know about this? Yes, sure thing. So the thing was like this particular hackathon. So we have our official TNP group. So the TNP PC only sent the link for the Mm-hmm. hackathon on the group. So I got to know about Okay. it from there only. But besides the Amazon hackathon as well, I was like I took part in many other hackathons. Like if you search, there was one hackathon by Wayfarer company as well, conducted around the same Yeah. time, and I got to know about it फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब वही लिंक्डइन वगैरह या फिर मतलब वो तो Mm-hmm. सर्च करते रहो लिंक्डइन है ट्विटर Yes. फिर अपने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसमें सिर्फ हैकाथॉन्स की इन्फो आती है हैकाथॉन्स की तो As ऐसे per जैसे the अर्श गोयल Telegram है channel. उनका अगर आप हाँ टेलीग्राम ग्रुप है ब्रॉडकास्ट है तो उस पे भी इन्फो आती रहती है तो वो मैं अच्छे से active था उस टाइम पे प्लेसमेंट सीजन चल ही रहा था और ऑन कैंपस मेरी लगी थी Hmm. 6 अक्टूबर को तो वो एक्चुअली काफी late है ऑन Hmm. कैंपस के हिसाब से तब तक तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आके चली जाती है तो मेरी ऑन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी Hmm. जितनी ऑफ कैंपस कल्ट फिट में लग गई तो ये था तो उस टाइम में एक्टिवली सर्च कर रहा था तो इन द मेन टाइम अमेज़न की आई थी ओपनिंग तो ये Hmm. हैकाथॉन तो उसका मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। द फर्स्ट राउंड वाज़ ऑनलाइन क्विज़ राउंड। सो उसमें ऐसा था कि Okay. यू हैव आई थिंक 30 और 40 सेकंड्स टू आंसर वन क्वेश्चन बट इफ यू आंसर इट विदिन द फर्स्ट 15 सेकंड्स यू गेट ब्राउनी पॉइंट्स ऐसे करके कुछ था। तो ऑल द क्वेश्चंस Hmm. वर बेस्ड ऑन ओएस, डीबीएमएस, आई डोंट थिंक सीएन वाज देयर, ऊप्स वाज देयर डेफिनेटली यस और थोड़ा डीएसए के बेसिक्स थियोरेटिकल डीएसए कि फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा उस हिसाब से सो दिस वाज अबाउट द ऑनलाइन राउंड फिर बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस लाइक उन्होंने फिर कुछ लोगों को हटा दिया था फिर कुछ स्पेसिफिक टीम्स वेंट ऑन टू द सेकेंड राउंड विच वाज एन ऑनलाइन ओए राउंड तो Hmm. ऑनलाइन ओए राउंड में प्रॉपर अच्छे से हुआ एक एक करके दो क्वेश्चन थे आई गेस हाँ दो क्वेश्चन थे और Hmm. ईज़ी तो मतलब एकदम मीडियम भी नहीं बट एकदम ईज़ी भी नहीं, स्लाइटली टुवर्ड्स द मीडियम मतलब चलो मीडियम मान लो, मीडियम लेवल के 2 क्वेश्चन्स थे और टाइम 60 और 60 मिनट्स अगर तुमने डीएसए कर रखी हो ना अच्छे से, स्ट्राइवर की शीट जो 450 की थी, से वो दोनों क्वेश्चन ना 30 मिनट्स में निपटा दोगे, इतने ईज़ी थे, इश्यू नहीं था। तो वो अच्छे से मैंने दोनों क्वेश्चन कर लिए। Hmm. आई थिंक वन ऑफ देम वाज़ रिलेटेड टू एरे ओनली। एरे का अगर आप प्रीफिक्स सम Hmm. यस एग्ज़ैक्टली एक क्वेश्चन प्रीफिक्स सम का Hmm. अच्छे से याद है, दूसरा याद नहीं बट इट वाज़ आल्सो रिलेटेड टू एरे ओनली। एरे का ही कोई एडॉन था मतलब आई थिंक ग्रीडी वाला था, एरे प्लस ग्रीडी वाला था। सो Yeah. दिस ओए राउंड फिर ओए राउंड खत्म हुआ। इसमें मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की काफ़ी ओए देखकर भी कि रादर देन द फैक्ट कि तुमने कितने टाइम में किया है, तुम मतलब कहीं से उठा के आ रहे हो मतलब प्लेजराइज्ड कोड ना Hmm. दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। Right. आई हैव सीन पीपल कि टाइम था वो मोर था, बट स्टिल दे गॉट शॉर्टलिस्टेड इन द नेक्स्ट राउंड। सो आई वुड रिकमेंड कि ऐसे उठा के कहीं से मत डालना, खुद से लिखो कोड, वो फ्लो Hmm. एकदम यूनिक हो, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट।
तो उसकी वजह से फिर वी वेंट ऑन टू द नेक्स्ट राउंड, बट फिर आगे अच्छे से कुछ क्वालिफाई, मतलब हमारा कुछ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उस राउंड तक हम नहीं पहुंच पाए थे। सो द प्रोसेस एंडेड देयर ओनली, बट ये जितने 2 राउंड्स हुए थे ना, बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस हमको वो आया था एक लिंक कि इफ यू आर इंटरेस्टेड फिल आउट दिस फॉर्म फॉर Amazon 6 मंथ। देन आई फिल्ड आउट एंड फिर प्रॉपर वो लिंक एक और आया था। तो हाँ, तो वो अब वो हैकेथॉन अलग और ये हायरिंग अब शुरू हुई है। वो आया था, इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें था ऑनलाइन असेसमेंट इनका जो होता है, उसमें फर्स्ट थिंग इज़ नॉर्मल डीएसए क्वेश्चन, 2 डीएसए होते हैं। आफ्टर इट वही लिंक जैसे आप सबमिट करो ना, इट रीडायरेक्ट्स यू टू अनदर लिंक, और वो एक Amazon पर्सनैलिटी वर्क स्टाइल असेसमेंट कुछ रहता है। पर्सनैलिटी असेसमेंट राउंड था ये। तो उसमें वो वाला पूरा देते हैं कि एग्री, स्ट्रांगली एग्री, नॉट लाइक मी, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। हाँ, तो ये था। तो ऐसे बहुत, मतलब ये आई थिंक ये जो राउंड था ना, वही 15 टू 20 मिनट्स चला होगा मेरा। समझ के मैं पूरा कर रहा था। वो देखो थोड़ा दिमाग खराब तो होता है क्योंकि थोड़ा समझ रहे हो ना, वियर्ड सा ही तो, बट में अगर आपको जाना हो तो दिस पर्टिकुलर राउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो वो ये क्वेश्चंस है दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब मीडियम लेवल के ही होते हैं। आप डीएस आपने कर रखा है तो कुछ कुछ आ जाते हैं एक्सेप्शनली डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वो बात अलग है, बट हो जाते हैं। बट दिस राउंड इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी डीएस से तो सब कर ही दे, इसमें जो अच्छे से परफॉर्म करे ना, ही गोज ऑन टू द नेक्स्ट राउंड विच इज द इंटरव्यू राउंड। तो इसमें उन्हें अलग से कुछ आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रॉपर ना, अमेज़न का ये अच्छा है कि प्रॉपर उन्होंने गाइड्स बना के भेजी थी कि वो एक, फिर ये वर्क स्टाइल असेसमेंट की गाइड भी अच्छे से। उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला था, बट मार्केट में सबको पता ही है कि उन्होंने अलग से एक पीडीएफ भेजी थी, दिस आर द 7 बिजनेस प्रिंसिपल्स ऑफ Amazon बाय जेफ बेजोस, ऐसे करके कुछ और भी कुछ 4 पीज ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती है। तो सिंपली जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इट चेक्स कि आपके ये पर्सनालिटी इस बिजनेस प्रिंसिपल्स के साथ मैच हो रही है कि नहीं। तो मैंने तो सिर्फ अच्छे से वो सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स पढ़ ली थी क्या होता है, और फिर वो पढ़ लिए थे 4 पीस वगैरह कुछ रूल थे। तो मैं सिंपली क्या कर रहा था, क्वेश्चन है तो जो उस किसी किस मैं मतलब रिलेट कर रहा था कि व्हिच पर्सनालिटी डज इट रिलेट, लाइक ट्रेट डज इट रिलेट टू दैट, प्रिंसिपल डज इट रिलेट टू फ्रॉम दोस देम। तो कई बार ये होता था कि यार इस हिसाब से तो ये होना चाहिए, इस हिसाब से तो, मतलब दो को कर रहा था वो रिलेट। तो फिर पर्टिकुलर सिचुएशन जो मुझे लगा कि मैं ये करूंगा, उस हिसाब से कर दिया। तो मतलब ये आप करवा नहीं सकते किसी से, ये थोड़ा रहता है कि आप पर्सनालिटी है तो निकल जाएगा राउंड ऐसे। तो निकल ये जाएगा। नॉर्मल अच्छे कोडर हो, आप काम करते हो तो हो जाएगा, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा प्रेप करने की जरूरत नहीं है इससे। ये चीज है थोड़ा वो, अगर बैक ऑफ माइंड आप रखो ये 7 प्रिंसिपल, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो वो देख के फिर किया मैंने राउंड, और फिर मैं तो भूल गया था, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि आ सकता है वगैरह करके, बट फिर इंटरव्यू आया, और इंटरव्यू में सिर्फ एक इंटरव्यू राउंड ही होता है, और वो वही 1 घंटे का, जिसमें होते 2 सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन, या इट वाज फ्रॉम ग्राफ, प्रीटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आप कहीं पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड शीट वाला। And second question was also from like zigzag traversal of binary search tree. Easy Yeah. था। Binary search tree, normal binary tree, zigzag traversal था। बट जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसमें हल्का सा वेरिएशन था। तो लाइक इट वाज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल, मतलब जो डायरेक्टली अवेलेबल होता है ना, उसका हल्का सा वेरिएशन था। एंड आफ्टर द इंटरव्यू व्हेन आई सर्च, इट वाज अवेलेबल ऑन गिटहब, सॉरी जीएफजी। किसी और ने सोल्यूशन रखा था ऑलरेडी, और वो कुछ 1-2 साल पुराना था। वो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पड़े होते हैं ना कुछ, उस वो था। फिर आफ्टर इंटरव्यू सर्च फॉर इट, तो मेरे को मिला। तो वही था। तो उसमें मेरे को दिक्कत हुई, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे लग गए 40 मिनट्स, और सेकंड क्वेश्चन मेरे को आता ही था, वो बता रखा है, तो वो 15 मिनट्स में कर दिया। तो क्योंकि वो तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड, प्रीटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो वो तो अच्छे से कर दिया। तो मतलब वही, वो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे मेरे को दिक्कतें आ रही थी, तो मैंने एक हिंट मांगा। तो वो कोई इश्यू नहीं है, पहले आप अच्छे से ट्राई करो, और एक हिंट मांग भी लो तो वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस वो के ऊपर सोच के आप कर लो क्वेश्चन तो चलता है। तो ये हो गया, बट दे डू नोट दैट यू हैव टेकन वन हिंट, राइट। तो वो सही है, बट अच्छे से आप कर दो सो तो उनको भी पता लगता है ना कि भाई इस बंदे ने एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई, कि इसने पहले लिखा था डिट्टो सवाल, ठीक है, इसने खुद दिमाग लगा के किया।
सो दैट ऑल्सो ब्राउनी पॉइंट्स। तो ये हुआ अच्छे से दोनों चीजें। फिर स्टार्टिंग के 2-3 मिनट से बैरली लगी हुई, क्योंकि स्टार्टिंग का इंट्रो वगैरह चलता है और इनका स्ट्रिक्ट है, मतलब 60 मिनट्स पे वो तो एंड कर ही देते हैं जितना भी हो। सो कीप लाइक टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है अमेजोन में, तो वो कर ही देते थे। 2-3 मिनट उन्होंने पूरा फिर रेज्यूमे से चीजें पूछी, मैंने बता दी और द इंटरव्यू एंडेड। यही। एंड एक चीज पे मैं थोड़ा वापस फोकस करना चाहता हूँ, लाइक व्हाट यू सेड, कि आप हिंट ले भी लो ना तो इट इज फाइन एज लॉन्ग एज यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। हिंट एग्जैक्टली। लेना इज नॉट अ बैड थिंग, मतलब द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू सपोर्ट यू, है ना? तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन It's टेकिंग अ like हिंट एज लॉन्ग एज यू it's नो। not an interview, it's rather a discussion only. Like what if you are going to Yes, solve the question exactly. together? That's how you should Hmm. like look at the interview process. Think of it. That's what your mindset should be. You know, both of you are solving the problem. They're This will not like a help judge you. who are judging you in Like every वो तो way. वहां पे आपको सिलेक्ट करने ही Yeah, आया they're ना, वो helping क्यों you. भी मतलब Yes. ऐसा Yes. कि मैं और इंटरव्यू लूं किसी और को लूं, आप आपको मुझसे खत्म करें ना, वही बात। Right, right, right. I'm very glad you talked about this. You know, you have to have this mindset. The interview is there to select you, not to reject you. Okay, so I guess that covers pretty much everything about Amazon's internship interview experience that Dhruvil went through with his hackathon based hiring of Amazon. So yeah, that's pretty much it. If anyone wants to know about Dhruvil's journey of how he, prepared for his placements, how he cracked Cult Fit off campus, and if you want to know more about that, then you can watch his previous video in which he has explained his entire journey. The link to that will be in the description. So yeah, thanks Rubil for coming and hope to see you again in another video. Thank you. थैंक यू।